of death and disability worldwide. And India is no less a victim of the early heart diseases predominance in Indian population. And it is not only the physical health that we should look about. Today we'll hear from Dr. Claire how the topic Dil Se Dil Tak. What are the other aspects of other than physical health that we should take care so that we remain healthy and hearty. Let me introduce Dr. Claire. He is now the working chairman of Fortis Heart and Vascular Institute at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram, Fortis Hospital, Basant Kunj. He completed his MBBS from Patiala Medical College and MD from and DM from GI Chandigarh. He completed MRCP and then returned to India in 1989 and was all the founding doctors of Fortis Escorts Art Institute. And he spent 20 years as its executive director for last 12 years of this day. He has an experience working in Saudi Arabia and UK for 6 years and PSRI for last 3 years. He's fellow of Royal College of Physicians, UK, fellow of American College of Cardiology, FSCC. He's a lifetime member of IMA, CSI, ICC, API, IHRS, and HRS. Dr. Clay is very active in interventional cardiology and has performed more than 25,000 coronary and renal carotid peripheral angioplasties. He is pioneer in electrophysiology and he established the first dedicated electrophysiological department in India at Fortis Escort Heart Institute. He initiated the radiofrequency ablation program at Escorts, and he was the first doctor in India to implant ICD, CRTP, and CRTD. He also did the first disc bundle pacing in India in 2015. He was instrumental in starting the RF ablation and cardiac devices implantation program in many centers, not only in India but in Pakistan, Bangladesh, and Sri Lanka. He has just about 150 national and international journal articles to his name and has been editorial board of Indian Art Journal. He is regularly invited as a guest faculty in various national and international conferences like HRS, SSC, and guest faculty in USA, France, Australia, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and Singapore. Dr. Claire has trained more than 200 doctors from India and abroad in field of interventional cardiology and physiology. He is honorary professor in cardiology of BHU, OP Jindal Sonipat. He is also a scientific advisor to various multinational organizations like Boston Scientific, Medtronic, and Jude. His services to the people of country has been recognized by society and he has been awarded with many awards like DSC by Punjab University and Lifetime Achievement Award by IMA, Padma Bhushan by Government of India in 2005. So, sir, we really privileged and honored to have you on this special day, and we would like to take your advice not only from medical side but also from emotional and psychological aspect of keeping the heart healthy. Thank you, sir, and the stage is yours. Thank you very much, Dr. Bera, for your rather very elaborate introduction. Thanks, Dr. Sangeeta, to be part of this program. Well, NTPC is a great organization, and I have a lot of relationship with the NTPC in the terms of that I've treated some of the CEOs of NTPC in my life and many patients. Even the kind of I think one of the first person, I'm forgetting his name, he's now 92, who started NTPC, has been my patient for a long time. He's still alive. He's very active. Mr. Kapoor, I don't know whether you know him. Yes, sir. Know. Right. First CMD of NTPC. Right. So he's now a friend of mine. He goes on me sending some WhatsApp messages from time to time, Right. So, today is World Heart Day. World Heart Day has been created by WHO. There is something called World Heart Federation.
Now the purpose of this has been, the main purpose of this organization has been to highlight the prevalence of cardiovascular disease in the world and to develop preventive strategies. Now the thing is that if you see 2021 data, I think there were around 18 million deaths in the world because of cardiovascular disease. But out of these, 70 to 75% premature deaths, they are preventable if you adopt a healthy lifestyle and preventive strategies. As you said, as Dr. Vera said in the beginning, that India is almost like a capital of cardiovascular disease, it's capital of diabetes. So we have a country where the modern medicine is available, but modern medicine is also expensive. So almost 65 to 70% of the people, they cannot afford private hospitals. And we also know that the public sector government hospitals, they are not able to deal with so many patients in our country. So what it means that if we adopt the preventive strategies at a national level, I think we can do a lot good to our country. We can really save billions of dollars, and I don't know how many hours of working hours from our workforce in the country, which is always a hindrance to kind of develop the country. Dr. Vera, I guess there are people who are not doctors in this meeting. Am I right? Yes, sir. There are doctors as well as the public who want to know about the heart health. So you want me to talk in Hindi? Yes, sir. Hindi, English. Hindi is okay, sir. No problem. सब चलेगा. Right. देखिए, जब हम हार्ट डिजीज की बात करते हैं तो हार्ट डिजीज कई किस्म की है. जैसे कंजेंटल हार्ट डिजीज है, जो बच्चा पैदा होता है. रफली 3 children in 1,000 live births, they will have congenital heart disease. अगर बच्चा सही पैदा होता है, उसके बाद बीमारी होती है, तो इसका एक्वायर्ड हार्ट डिजीज. एक्वायर्ड हार्ट डिजीज में जो इंडिया में है, वो मेनली 3-4 किस्म की बीमारियां हैं. एक तो रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कि बचपन में होती है, समथिंग लाइक 5 to 15 years of age, और दिस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, और इसमें हार्ट के वेल्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. रूमेटिक हार्ट डिजीज इज डिक्रीजिंग नाउ इन इंडिया बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूविंग पर कैपिटा इनकम. ये देखा गया है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है किसी सोसाइटी की, किसी कंट्री की, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज कम हो जाती है. टू दी एक्सटेंट के अब वेस्टर्न वर्ल्ड में रूमेटिक हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. इंडिया में भी इफ यू सी states which are well off, for example, Chandigarh, Punjab, and Kerala, parts of Haryana also, the disease is decreasing much fast. और अभी भी बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसी जो है जो स्टेट्स हैं जिनकी GDP अभी कम है, तो उनमें बीमारी काफी होती है. जो सबसे ज्यादा बीमारी है हार्ट डिजीज की, जिसके लिए हम सब लोग अखबारों में भी, पेपरों में भी शोर शराबा हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या है कि इसमें जो हार्ट वाली नाड़ियां हैं हमारी, जिनको हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं, और ब्लॉकेज आने की वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो हार्ट मसल को कम होती है. तो इसके पहले तो ये होता है कि अगर किसी की 70-80% ब्लॉकेज है तो उनको सिर्फ सिम्टम होते हैं चलने फिरने में या एक्सर्शन में. चेस्ट पेन हो सकती है, और जब आदमी एक्सर्शन रोक देता है, जैसे चलना फिरना, या चल रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अगर हम रुक जाएं तो उसमें आराम मिल जाता है. लेकिन इसका मतलब ये है कि वो परमानेंट डैमेज नहीं है, वो ट्रांजिटरी ब्लड लॉस होता है और मसल रिकवर कर जाता है जब हम रुक जाते हैं. जो दूसरी चीज होती है कि हार्ट अटैक. हार्ट अटैक क्या है कि कोई भी ब्लड वेसल हार्ट का जो है, जब सडनली 100% बंद हो जाए तो फिर
हार्ट में डैमेज होता है, जिसको कि हार्ट अटैक बोलते हैं हिंदी में, और हम टेक्निकल लैंग्वेज में उसमें बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। राइट, सो विकास, here can you help me out? Something has happened here. Am I audible, Dr. Sir, Bera? you are audible. Sir, you are audible. Yeah, वापस आ जा रहा है उसमें जिम में। सो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो अगर हम बात करें, ये बीमारी आजकल और भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और सडनली डेथ होने के भी चांस देखा गया हमने कि सडन डेथ्स हो रही हैं कंट्री में, यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में। सो विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन इन आवर कंट्री। तो ये बीमारी क्यों होती है? बेसिकली वी रियली डोंट नो, इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हम इसको मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं स्मोकिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल अगर बड़ा हो। कोलेस्ट्रॉल में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है। अगर LDL ज़्यादा है तो ये बीमारी ज़्यादा होती है। अगर HDL जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ये तो 4 हो गए मेजर रिस्क फैक्टर। फिर माइनर रिस्क फैक्टर में आती है फैमिली हिस्ट्री और हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड अगर बड़ा हो, या होमोसिस्टीन बड़ी हो ब्लड में, अगर किसी को गाउट की बीमारी हो, यूरिक एसिड भी बड़ा हो। फिर जो है ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की फैमिली में है वो भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि फैमिली हिस्ट्री को माइनर रिस्क फैक्टर कहा गया है, लेकिन मेरे मुताबिक तो इसको मेजर रिस्क फैक्टर में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके पेरेंट्स को ये हार्ट की बीमारी है तो बच्चों को होने के बहुत ज़्यादा चांस है। फिर जो रोल आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस का, जो कि आजकल की दुनिया में बढ़ती जा रही है। सो अगर हम लैक ऑफ एक्सरसाइज आल्सो इज ए रिस्क फैक्टर। तो अगर हमने इस बीमारी को प्रिवेंट करना है तो वी हैव टू अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हमारा जो वेट है वो हमें कंट्रोल में करना है, और उसका सिंपल फार्मूला है कि हमने अपनी हाइट देखनी है। जितनी हाइट आपकी सेंटीमीटर में है -100, वो जो फिगर आती है वो हमारा मैक्सिमम वेट चाहिए। अगर समझ लो कि मैं 175 सेंटीमीटर हूँ तो मेरा मैक्सिमम वेट 75 चाहिए, दैट इज वेट। दूसरा है आपकी पेट, जो वेस्ट लाइन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेट भी ठीक ठाक है लेकिन आपका बल्जिंग टमी है, वो भी रिस्क फैक्टर है। तो ये जो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि भी ये 90 सेंटीमीटर चाहिए मेन में। इफ यू मेजर एट द लेवल ऑफ लाइकस, टुन्नी के जगह अगर हम मेजर करते हैं तो, और फीमेल में लेस देन 85। और ये मैं देखा है कि इंडिया में अगर आप 50 साल से ज़्यादा ले लो, मेन एंड विमेन बोथ, ये बहुत कम लोग हैं ये इस फिगर में आएंगे। यूजुअली हमारे कंट्री में अब्डोमिनल वेस्ट ही ज़्यादा है। इसका जेनेटिक रीज़न भी है। दूसरा जो रीज़न है कि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। तीसरा रीज़न है कि हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करते। सो वेट नंबर 2 पे पेट। नंबर 3 में अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है उसका सही इलाज होना चाहिए। पहले तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल करनी है, जैसे वेट को ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है। अगर उसके बाद भी शुगर ज़्यादा है तो दवाई खानी है। तो व्हाट इज ए गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज? गुड कंट्रोल वो होता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन A1C, हम एक ब्लड का टेस्ट कराते हैं जो कि 3 महीने के एवरेज शुगर आपको बताता है। ये जो हीमोग्लोबिन A1C है ये 6 और 7 के बीच में चाहिए। फिर बात रही ब्लड प्रेशर की, बहुत कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट अगर हम 18 साल के ऊपर जो अडल्ट पॉपुलेशन को ले लें, roughly 25% of the people in the world they have got hypertension.
और व्हाट इज हाइपरटेंशन? एनी ब्लड प्रेशर विच इज मोर देन 130/80 इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी सबसे पहले वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सॉल्ट की मात्रा कम करिए। इंडिया में देखा गया है कि ये डेटा भी है कि हम सॉल्ट एक्स्ट्रा खाते हैं। एवरेज सॉल्ट जो खाना चाहिए हमें 5 ग्राम खाना चाहिए। इंडिया का डेटा जो है वो मिनिमम हम 8 ग्राम सॉल्ट खाते हैं 24 घंटे में। सो सॉल्ट की इनटेक कम करनी है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो अगर फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फिर हमने लगातार दवाई खानी है। एक लोगों में बहुत बड़ी मिथ है कि जी मेरे को तो सिम्टम कोई नहीं तो मैं ठीक हूँ, मेरे को बीपी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। बाई एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विद ब्लड प्रेशर उनको कोई सिम्टम नहीं होता, और दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर। तो ब्लड प्रेशर को पता करने का एक ही तरीका है कि ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँगा फिर भी उनको भी कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, ताकि अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए। सो WHO कहती है कि हमारा ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए एवरेज। ये एक सही कंट्रोल को मानते हैं। फिर है रोल ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज करो, इट शुड बी मॉडरेट एक्सरसाइज। द सीवियर एक्सरसाइज इज नॉट यूजफुल फॉर हार्ट, समटाइम्स इट कैन बी डेंजरस आल्सो इन सम पेशेंट्स। अगर किसी बंदे को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है तो फिर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि उनको कार्डियक चेकअप होना चाहिए। बट इवन यंग पीपल, फॉर एग्जांपल अगर आप रेसलिंग करना चाहते हो, आप मैराथन करना चाहते हो, आप माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हो, या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलना चाहते हो, तो ऐसे लोगों का कार्डियक चेकअप, ECG एंड एको एंड कार्डियक चेकअप होना चाहिए। क्योंकि कुछ कंजेनिटल बीमारियां होती हैं इनहेरिटेड, जैसे एक बीमारी है हेपेटोक कार्डियोमायोपैथी, एक्यूटी प्रोलॉन्गेशन, जिसमें कि ECG में जमांद्रू ही प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट, ARBD है एक डिजीज जिसको रिदोमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया कहते हैं, जिसमें राइट वेंट्रिकल का जो मसल है वो फाइब्रोसिस, उससे डिजेनरेशन हो जाती है उसकी। तो ऐसी बीमारियों में अगर आप सीवियर एक्सरसाइज करो तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि हमारे कंट्री में जब भी किसी की सडन डेथ होती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको हार्ट अटैक था। ये सच्चाई नहीं है। हाँ, यस, मोस्ट ऑफ सडन कार्डियक डेथ्स आर बिकॉज ऑफ कॉर्निक आर्टरी डिजीज, लेकिन अगर हम 35 से कम सडन कार्डियक डेथ लें तो उसका कारण मोस्टली कॉर्निक आर्टरी डिजीज नहीं होता, अदर अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, एक्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, एक बीमारी का नाम ब्रुगाडा सिंड्रोम है। उनको एक्सरसाइज करने से या इवन स्पॉन्टेनियसली कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और ये बीमारियां तभी पता चल सकती हैं कि अगर हम उनका ECG किया जाए और उसका कार्डियक चेकअप किया जाए। एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं। सिर्फ यही नहीं कि आपकी हार्ट की बीमारी कम होती है या डायबिटीज कम होती है। एक्सरसाइज इज एंटी डिप्रेसेंट। ये आदमी खुश रहता है बिकॉज ब्रेन में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। इन जनरल हैप्पीनेस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है एक्सरसाइज। और मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, या आप जॉगिंग कर लो, फास्ट वॉकिंग कर लो, वट एवर मेक्स यू हैप्पी, स्विमिंग कर लो। स्विमिंग और साइकिलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। साइकिलिंग का एक एडवांटेज ये भी है कि ये नीज पे प्रेशर नहीं पड़ता, जैसे भागने का या चलने का नीज पे प्रेशर पड़ता है। और स्मोकिंग किसी फॉर्म में भी, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, ये तो बिल्कुल ही जीरो करना चाहिए। और जो अल्कोहल का क्वेश्चन है, अल्कोहल के लिए मैं कहूँगा कि अगर हो सके तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। देखो WHO तो ये कहती है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर द ह्यूमन बॉडी। हाँ, लेकिन अगर किसी में कंट्राइंडिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नहीं है, और वो बंदा मेंटली स्टेबल है, ये नहीं कि एक पैक पीने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो अगर एक बंदा ऐसा है जो कि इफ ही वांट्स टू टेक अल्कोहल, आई वुड से हमारी रिकमेंडेशन ये है, इट शुड नॉट बी मोर देन 60 ml ऑफ विस्की, 1 ग्लास ऑफ वाइन एंड 1 pint ऑफ बियर, अगर आप लेना चाहते हो, इतनी रिकमेंडेशन है।
जब आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो ये अल्कोहल उसको बढ़ाती है, तो उन दिनों में तो बंद करनी चाहिए। फिर रह गया क्वेश्चन आखिर में, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आज की दुनिया में तो स्ट्रेस बढ़ती ही जा रही है। स्ट्रेस तो खैर हमेशा थी, ऐसी बात नहीं, जब जिससे दुनिया ये कुदरत ने साजी है उस वक्त से ही स्ट्रेस तो है, लेकिन स्ट्रेस ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। देखो डेवलपमेंट के कई नुकसान भी हैं, जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। तो कंपटीशन है, लोगों को जल्दी पैसे चाहिए, और एक दूसरे को ओवर टर्न करने की, हम आगे बढ़ने की जो तमन्ना है, ये सारी चीजें स्ट्रेस लाती हैं। स्ट्रेस तो कम नहीं होगी, लेकिन हमें ये सीखना है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जैसे ये हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है जिसको हमें डेवलप करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक तो एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होती है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर आर स्टडीज टू शो दैट। दूसरा, अगर आपको मंदिर जाके, गुरुद्वारा जाके शांति मिलती है, अच्छा लगता है, तो जरूर जाना चाहिए। दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारनी चाहिए, फैमिली के साथ बैठना चाहिए। देखो वर्ल्ड में 5 जोन्स, ब्लू जोन्स मानी जाती हैं, जैसे एक इटली में है, एक जापान में है, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। तो किसी ने उनका एनालिसिस किया कि भी क्यों भाई इतने लोग वो क्यों ज्यादा जीते हैं। वो कुछ ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते, ऐसा कोई जिम में भी नहीं जाते, और वो खाते भी सब कुछ हैं जो भी उस लोकेलिटी में पैदा होता है। लेकिन कॉमनलिटी की क्या मिली उनमें, कि एक तो उनकी कम्युनिटी लाइफ बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए रहते हैं वो। नंबर 2, लोकल प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर की है वो लोकल खाते हैं, बाहर से जहाँ स्टोर में जो चीजें पैदा रखी होती हैं वो नहीं खाते, फ्रेश खाते हैं। और वो तकरीबन ये सारी की सारी 5 ब्लू जोन में लोग ना चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक जो हमें जो प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए इस कंट्री में सबको, कि डोंट सिट, बैठना नहीं है, चलते रहो। सो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में भी मैं तो, अगर मेरे को पानी की जरूरत पड़ती है, मैं सर्वेंट को आवाज नहीं लगाता, मैं खुद जाके फ्रिज से पानी लेता हूँ, फिर गिलास छोड़ के आता हूँ, कि उसमें भी चलना रहता है। जो लेडीज हैं जैसे घर की सफाई करती हैं या झाड़ू पोछा कर दी हैं, वो भी एडवांटेज है। तो जो हमारा एटलीस्ट मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास में ये सोसाइटी में बन गया है कि सर्वेंट रखो, उनसे सारा काम कराओ, वो भी एक नुकसान वाली बात है। आप खुद करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीजें मैं और बतानी चाहता हूँ आपको, कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिंदगी का, कि हम और क्या कर सकते हैं। दिस इज नॉट आउट ऑफ द बुक, लेकिन ये मेरी अपनी थिंकिंग है। देखो स्ट्रेस जो है या टेंशन वाली बात जो है, इसको दूर कैसे करना है, तो देयर इज नॉट ए कोई क्विक फिक्स, इसका इलाज नहीं है। लेकिन एक तो फियर अपनी जिंदगी से निकालो। फियर सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ गोइंग डाउन इन लाइफ, बला बला, यू नो, एनी फियर। तो आपको जहां तक भी हो सके फियरलेस आपको करना चाहिए। देखो डेथ वाली बात ये है, ये तो हमें पता, सब धर्मों में लिखा है, और हमें पता है, रियलिटी है कि एक दिन मरना है। तो उसको ना तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ना वो प्रीपोन होगी। देखो ऐसा भी होता है कि एयर क्रैश हो गया, उसमें से भी तो लोग बच जाते हैं। और दूसरा ये है कि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट करा लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर डेथ होनी है तो फिर भी हो जाएगी। सो डेथ से डरना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो चीज रियलिटी है। हाँ, जो फियर ऑफ डिजीज है, मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा जेन्युइन है, कि भी आदमी सोचता है कि मैं कोई भाग ना हो जाऊं, मेरी डिसेबिलिटी ना हो जाए। उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम हेल्थी लाइफस्टाइल कर सकते हैं, और एनुअल चेकअप जरूरी है। एनुअल चेकअप जो है बहुत ही जरूरी है, हमारे कंट्री में उसका रिवाज नहीं है। डिपेंडिंग ऑन एज टू एज हमारे पास टेस्ट डिवाइस करते हैं हम लोग। ये 25 साल के लिए एनुअल चेकअप क्या होना चाहिए, 30 के लिए क्या, 35 के लिए, 40 के लिए क्या। सो अगर हम एनुअल एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा लें तो कोई भी एबनॉर्मलिटी जल्दी पता चल सकती है, जिसको भी हम डील कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको डॉक्टर एडवाइस देता है तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो मेरा कहने का मतलब अल्टीमेटली है कि फियर इज द किलर। सो फियर को दिमाग से निकालो,
दूसरा ये है कि ईगो जो इंसान की है उसको भी जहां तक हम कम कर सकें करनी चाहिए। ईगो इज ए किलर। बहुत ईगो से कोई आदमी तरक्की नहीं कर सकता। अगर ईगो हमारी कम हो तो हमें बहुत शांति मिल सकती है। एंड वी शुड कंसिडर वर्क इज वर्शिप। कहीं भी हो, चाहे एनटीपीसी में हो, चाहे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हूँ, जो आदमी वर्क को वर्शिप मानता है, मैं समझता हूँ कि उसका वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। और डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये तो इट शुड बी पैशन, इट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफ। फिर एक चीज और है कि डेवलप द फिलॉसफी टू हेल्प अदर्स ऑलवेज। कि जब भी आप किसी जिंदगी में कहीं भी किसी वक्त भी कोई हेल्प कर सकते हो, कोई हेल्प आपकी मांगता है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो, ये आपको बहुत खुशी देता है। अच्छे हार्मोन बॉडी में पैदा होते हैं हेल्प करने से, पर्टिकुलरली उन लोगों की जो आपके रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव नहीं है। ये अज्यूम करना चाहिए हमें कि भाई मेरे को परमात्मा ने पैदा किया है देने के लिए, लेने के लिए नहीं। सो अगर हम वो फिलॉसफी अप्लाई करें, दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल। फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि जिंदगी में 4 काम करने चाहिए, 5वां काम करने की जरूरत नहीं है। और 4 काम क्या है? एक तो जो आपका मेन काम है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अपना काम ईमानदारी से करूँ। दूसरा, मैं एक्सरसाइज जरूर करूँ। तीसरा, 7 घंटे की नींद जरूरी है। चौथा, जब भी आपको टाइम मिलता है जिंदगी में, फ्री टाइम, उसमें मजा करना चाहिए पूरा। आपको यू शुड चिल, मस्ती करनी चाहिए किसी भी तरीके से, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो। और ये जो मस्ती वाला या एंजॉयमेंट वाला कंसेप्ट है, ये पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। एक लोगों को गलत फहमी है कि जी आपके पास बहुत पैसे हैं, आप पिकनिक पे जा सकते हो, आप फॉरेन कंट्री में जाके विजिट कर सकते हो, आप जैसे इट इज नथिंग टू विद मनी, वट एवर यूर सराउंडिंग। यार आपका कंसेप्ट चाहिए कि मैंने मस्ती करनी है, वो मस्ती करनी चाहिए। और हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव नहीं। ये कभी भी आप गिर पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी टांग टूट गई तो आप रो मत। आप ये समझो कि भाई ब्रेन तो इंजरी नहीं हुई, कम से कम परमात्मा आपके लिए शुक्र है। तो इफ यू थिंक पॉजिटिवली इन एवरीथिंग, हर हालात में। और मैं समझता हूँ कि क्वालिटी ऑफ ए मैन इज ओनली असेस्ड बाय व्हेन ही इज इन ट्रबल। अगर आप ट्रबल में स्टेट खड़े हो सकते हो, आपने विश्वास है कि मैं इस ट्रबल से निकल जाऊंगा, आपकी बहुत हेल्प होती है उसके। दूसरा ये है कि जब भी आप देखो, हम लोग सब कंपैरिजन करते हैं जिंदगी में, लोगों से कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास कितना बड़ा घर है, उसके पास कितनी कार है, बड़ी कार है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मन को शांत रखना है, तो जब भी आप सोचो कि भी मेरी कंडीशन क्या है, तो आप उन लोगों से कंपेयर करो जिसके पास आपसे कम है। अगर हम हमेशा ये देखें कि फलाने आदमी के पास बड़ी कार है, ज्यादा पैसा है, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते, उसमें हमारी डिसअपॉइंटमेंट रहती है लाइफ में। हाँ, जब आप कंपेयर करना चाहते हो कैपेबिलिटी में, किसी प्रोफेशन में, कि चाहे मेडिसिन है, चाहे नॉन मेडिसिन है, चाहे एनटीपीसी का काम है, फिर आपको कंपेयर करना चाहिए आपसे ऊपर से। देखो भी वो बंदा बहुत कैपेबल है, मैं उसकी उसकी मैं नकल करनी चाहता हूँ, मैं भी इतना ही कैपेबल बनना चाहता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को अपनी जिंदगी में हेल्प करती हैं। और मैं बिलीव मी दैट मैं बहुत स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। हालांकि मेरा काम डिफिकल्ट है, मेडिसिन का काम कोई आसान नहीं है, पर्टिकुलरली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो मैं करता हूँ और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करता हूँ। लेकिन मैं बाई एंड लार्ज आई एम रिलैक्स्ड, मैं खुश रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, अपार्ट फ्रॉम ये जो सब है, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हमारा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव हेल्दी एटीट्यूड विद द होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। So I think I will rather now close here, and I will be very happy to answer some of the questions, whatever you want to ask me. Thank you very much. Thank you, sir. I would request those who are in the program, please write it down on the chat box so that I'll put a question to Dr. Clay.
सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस। लोगों का ये डर है कि कोविड के बाद कुछ हार्ट डिजीजेस और हार्ट की बीमारियां बढ़ गए हैं, और उसको डर को हटाने के लिए हम लोग क्या परहेज करें या क्या टेस्ट करें ताकि हमको पता चले कि कोविड का कोई असर हमारे हार्ट के ऊपर नहीं है। राइट। जिन लोगों को तो कोविड हुआ था माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे उनको दाखिल नहीं होना पड़ा, उनकी ऑक्सीजन ड्रिप नहीं करी, मैं समझता हूँ अगर उनको कोई सिम्टम नहीं थे उनको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मॉडरेटली सीवियर हुआ था कोविड, कि जी थोड़ी देर के लिए उनकी ऑक्सीजन लेनी पड़ी, जहाँ उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप किया, जहाँ उनको दाखिल होना पड़ा, इन लोगों को बहुत जरूरी है कि उनकी रिकवरी के बाद जब रिकवर कर जाते हैं उसके 3 महीने बाद एक ईसीजी और एको कराना चाहिए हार्ट के लिए, क्योंकि कोविड में देखा गया है कि कोविड की जो वायरस है वो हार्ट को इन्वॉल्वमेंट करता है। समथिंग लाइक 20% of the severely diseased COVID patient had a cardiovascular manifestations। या तो मायोकार्डाइटिस होता है इनमें, या रिदम की प्रॉब्लम होती है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन बड़ी कॉमन है, और कई बार ब्रेडिकार्डिया होता है। और अगर देखो ना, कई क्या है कि कोविड हुई, उन्होंने टेस्ट कुछ नहीं कराया, उसके बाद सडनली एक्सरसाइज शुरू कर दी, अगर उसको अंडरलाइंग मायोकार्डाइटिस था तो ही कैन हैव ए कार्डियक अरेस्ट बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड इज कि मॉडरेट जिनको सीवियर हुआ है कोविड, उनको रिकवरी के 3 महीने बाद अपना कार्डियक चेकअप करना चाहिए। Thank you, sir. One more question in the chat box. It's safe to consume Rojuvas regularly throughout lifetime to maintain LDL below 100? Any possible side effects? Or Very good any question. invasive Very good test to question. know arterial blockage? देखो, जो कोलेस्ट्रॉल की बात है तो हमारी रिकमेंडेशन आर दैट एज फार एज पॉसिबल एलडीएल शुड बी बिलो 100, but when we want to we will first tell them to follow good healthy lifestyle, exercise, reduction of sugar content, reduction of refined carbohydrates, reduction of fried things, एंड ए रेगुलर एक्सरसाइज। अगर उसके बाद भी उनका एलडीएल ज्यादा है, देन वी असेस द कार्डियोवास्कुलर रिस्क ऑफ दीज पेशेंट इन नेक्स्ट 10 years। देन वी हैव टू कंसीडर मेनी थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल कि उनकी फैमिली में हिस्ट्री है कि नहीं है, डायबिटीज है कि नहीं, हाइपरटेंशन है कि नहीं, और उनको उनकी होमोसिस्टिन कितनी है, स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स हैं कि नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिस्क factor in that patient, we decide that I want to treat this patient with the medicine. For example, I'm telling you the story of my own mother-in-law. She had hypertension, but मस्त थी वो, उनका LDL रहता था 140 के करीब, और उनकी फैमिली में किसी को CVD की हिस्ट्री नहीं थी। I decided initially to give some medicine, but she didn't want to take. Ultimately, she died at the age of 88 with that 140 or 150 LDL. So, लेकिन if you have, for example, diabetes, and if you're a smoker, then I want to give them statin to decrease the LDL level. So there is a method to calculate the cardiovascular atherosclerotic risk in next 10 years. We base our decisions on that principle, not on just the LDL levels, but if somebody has LDL levels after lifestyle modification and good exercise more than 150, then I would say I would like to give them a medicine to decrease the cholesterol, atorvastatin or rosuvastatin। और ये देखा गया है कि जो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं, इनमें कम से कम नहीं तो 7-8 लार्ज ट्रायल हुई हैं वर्ल्ड में, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट रिडक्शन ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। और मैंने कभी ये भी कई बार देखा है दैट जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि जी एलडीएल इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ब्ला ब्ला, ऑल दैट बुलशिट। सो आई वुड आल्सो रिकमेंड all the listeners here that please never believe social media for any medical advice. You should go to the appropriate specialist and then ask. Thank you, sir. तो और एक सिमिलर सवाल है कि रोजुवास 10F का साइड इफेक्ट क्या है? देखो, बेसिकली जो स्टैटिन के जो साइड इफेक्ट हैं, जो मेन साइड इफेक्ट हैं,
some kind of muscle pain and aches सबसे ज़्यादा important है. Or some people, they have also significant weight loss on statin, and it is very rare that they can have rhabdomyolysis. कि आपने शुरू करा statin and they have very severe muscle pain, muscle enzyme बढ़ जाते हैं. अगर आपको rhabdomyolysis होता है या इस तरह की साइड इफेक्ट होती है, those patients should never be given statin again. उनके लिए fortunately there are options available now, other drugs are available like PCSK9 inhibitors, रिपाथा वगैरह, उनमें ये प्रॉब्लम है. लेकिन जो statins के advantages हैं, it is not only that it is decrease the cholesterol, there are also pleiotropic positive factors. There are other antioxidant factors, advantages of statin. So we have to balance. You know, there are some side effects, but if you compare these cost, the risk versus benefit ratio, in majority of the patients, it will be in favor of taking statins rather than not taking statins. Thank you, sir. Another question is, how low BP has low BP has harmful effects on heart? Right. See, first of all, I want to tell you what is low blood pressure. Technically, we describe low blood pressure when the systolic blood pressure, upper wala BP, is less than 90. But BP levels also depend on age of the person. Number one. Number two, the width of the upper arm, इसका diameter कितना है. जितनी डायमीटर छोटा हो गया, जैसे बहुत पतले लोग हैं उनका बीपी लो आएगा, अगर ये मोटा है तो उनका बीपी टेक्निकली ज्यादा आएगा. सो व्हेन यू कंपेयर कफ बीपी वर्सेस इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो मॉनिटर करते हैं हम, तो ये चीजें देखी गई हैं कि जिनकी बाजू काफी मोटी है उनका बीपी ज्यादा आता है, और बीपी का कफ जो है वो भी उसकी अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए. अगर कोई बहुत बंदा मोटा तो छोटा कफ अगर लगाओगे तो फेलेशियस आएगा. लेकिन यस, अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, इसे मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो 85 भी नॉर्मल है, आई डोंट केयर अबाउट दैट. लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत वीकनेस लगती है, यू फील गिडी स्पेल्स के मैं गिरना जाऊं, या अगर यूरिनरी आउटपुट कम होती है, दैट इज लो ब्लड प्रेशर. तो अगर लो ब्लड प्रेशर जो है मोस्टली एक्यूट डिजीज है, इट इज नॉट ए क्रॉनिक डिजीज. इससे एक्यूट मतलब किसी को हेमरेज हो गई, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया, किसी को सेप्सिस होगी, इन्फेक्शन होगी बॉडी में, सो दैट्स ए एक्यूट. तो वो जो भी जिस वजह से बीपी लो हुआ, अगर उसको हम ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाता है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉनिक लो बीपी, मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर मेरा तो बीपी बहुत लो रहता है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर्टिकुलरली लेडीज आती हैं जिनको वो कहेंगे मेरे को लो बीपी है. तो अगर आपको कोई हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन एको नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल कोई अगर हार्ट की बीमारी नहीं है और आपको कोई सिम्टम नहीं है, फिर 90 सिस्टोलिक या 85 सिस्टोलिक भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है. जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से लो बीपी रहता है, वो एक तो है एडिशनल डिजीज कहते हैं जिसको कि लैक ऑफ स्टीरॉयड होते हैं, जैसे जिसमें कि अपना सुप्रारीनल ग्लैंड की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें कि स्टीरॉयड पैदा नहीं होते. यस, दे हैव ए लो बीपी. दूसरा क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, जैसे सम ऑफ द सोसाइटी लाइक इथियोपिया में अगर देखो जब फैमिन हुआ था, तो ऐसे लोगों को अगर देखोगे बीपी बहुत लो रहता है. थर्डली, अगर बहुत ही थिन इंडिविजुअल हो, वो टेक्निकली लो होता है, वैसे उनका बीपी लो नहीं होता. तो क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर इज अ वेरी रेयर डिजीज, नॉट अ कॉमन डिजीज. Thank you, sir. Another question is related to oil. Which oil is best for heart health? Right, very good question. Again, I would say जो हमारी रिकमेंडेशन है और द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, पहली बात तो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कुकिंग ऑयल्स. वी डोंट रिकमेंड एनीबॉडी शुड ड्रिंक ऑयल दीस डेज. जैसे पहला जमाना था, लोग मक्खन खा भी लेते थे उसमें कटोरी में लेके, वो तो अब जमाना खत्म हो गया और वो होना भी नहीं चाहिए. रफली आई वुड से वी शुड यूज 70% cooking should be done in unsaturated oil, जो कि कोई भी ले सकते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है,
या ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है। ओलिव ऑयल महंगा है, और ओलिव ऑयल जिस तरह के इंडियन खाना हम बनाते हैं तड़के लगा लगा के, उसका कोई खास फायदा नहीं। सिर्फ लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर ओलिव ऑयल यूज करना है तो वो अपने सैलड पे यूज करें, तब उसका फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये जो डिफरेंट ब्रांड हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ग्राउंडनट, ये बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑयल में कुछ चीज पॉजिटिव है, उसमें दूसरी चीज नेगेटिव है। तो अगर आप बदलते रहोगे, जैसे 2 महीने एक यूज कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, दिस इज ए गुड फिलॉसफी। रफली आई वुड से 20% ऑफ द कुकिंग शुड बी इन मस्टर्ड, और रफली 10% ऑफ द कुकिंग शुड बी इन देसी घी। अब अगर हम देसी घी को हम कुकिंग कर सकते हैं, या तड़का लगा सकते हैं, या अपनी चपाती पे लगा सकते हैं, तो देसी घी ये नहीं कि जीरो करना, वो भी गलत है। देसी घी में भी एडवांटेजेस हैं, देयर आर सम फैट्स व्हिच आर वेरी गुड फॉर द बॉडी। सो दिस इज रफली द फिलॉसफी ऑफ द ऑयल्स। Thank you, sir. I know, sir, you also at this age you usually go for cycling, and I have seen you many times in Agust Gandhi Marg and also in Vishnu Marg. So one question is related to that. At the age of 65, which one is preferred, cycling or walking? आई वुड प्रेफर एनी डे साइकिलिंग, अगर आपको साइकिलिंग करनी आती है। कई लोग, जैसे मेरी वाइफ साइकिलिंग नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी है, वो डरती है कि मैं गिरना चाहूँ। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट फॉर साइकिलिंग, साइकिलिंग इज बेटर देन वॉकिंग। वाई? देयर आर 2 रीजन। वन इज कि आपके नीज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वियर एंड टीयर। दूसरा ये है कि व्हेन यू साइकिल, नॉट ओनली लेग्स but also your abdominal muscles contract if you really cycle fast. So more muscles are recruited in cycling than just walking. अगर मेरे से पूछो what is the best exercise, बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग है, बिकॉज स्विमिंग में क्या है, इट इज ए ट्रोमैटिक एक्सरसाइज, और इसमें most of the muscles in the body are recruited, neck muscles, abdominal muscles. So swimming is a very good exercise, लेकिन swimming की वो technical problem है, everybody doesn't have the access to a swimming pool, number one. Number two, it takes more time, you have to go, कपड़े उतारो, कपड़े पहनो, फिर दोबारा नहाओ. So that is a little challenge, but otherwise swimming is a very, very good exercise. I will rate cycling in number 2. Then walking, then it will be walking, then anything else. But yes, any like light sport, badminton or tennis or whatever you want to do is good use. Thank you, sir. One more question is, do you have to take BP medicines for life? Say it again, sorry. Do we have to take BP medicines for life, lifelong? For prevention of heart disease? Yes, sir, for blood pressure. Yeah, see, blood pressure is a very kind of tricky disease. Now, one thing is that there are phases when the blood pressure goes high, and then you have to take medicine, or sometimes you have to increase medicine. But then the BP starts going down, and it's normal, you have to decrease medicine, and sometimes you have to stop medicines. Particularly, if you are going through a stressful period, BP badega. Lekin when the stressful period is over, your BP can come back to normal. So the only way to decide whether you have to continue medicines or not is frequent, regular BP checkup. और what is the frequency? Frequency should be कि जिन लोगों को बीपी की बीमारी है, किसी स्टेज पे भी आई है, तो उनको हफ्ते 10 दिन में एक बार बीपी जरूर चेक करना चाहिए. और ये दूसरा चीज है कि ये टाइम भी चेंज करते रहना चाहिए. कभी मॉर्निंग में देखो, कभी शाम को देखो, कभी दोपहर को देखो, so that you don't miss the rise of blood pressure in different time. तो अगर आप बीपी देखते रहो, अगर आपका बीपी मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग, लेट्स से 85 to 90% रीडिंग 130-80 से नीचे है, तो आपको दवाई की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप देखना बंद कर दोगे, देन जब बीपी बढ़ जाएगा, देन आप मिस करोगे. तो बेसिकली मॉनिटरिंग शुड बी लाइफ लॉन्ग. दवाइयां जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या कम करनी है, ज्यादा करनी है, दैट विल वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. Thank you so much. And simple question: what is the optimal heart rate for a good heart condition? See, basically, if you take a resting heart rate, I would say a healthy resting heart rate is between 55 and 80 or 75.
लेकिन जिन लोगों को, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट रेट लो रहता है. तो इन जनरल, if you don't have any disease and your heart rate is low, that means biologically you are better than the people who have a high heart rate. लाइक जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जब प्लेयर्स हैं, मेनी टाइम उनका रेस्टिंग ईसीजी करते हैं हम, तो हार्ट रेट उनका 45, 46, it is science with them, but the rate is very low. So it directly depends on the physio, aerobic exercise, how much you do. But any heart rate, yeah, I think between 55 and 75 is normal. Sir, one clinical question is, इनको diagonal and distal main artery में stent हुआ है, 70 years male, and वो जब 200 steps चलते हैं पैदल, उनको right side chest में pain होता है. Right. Is it related to cardiac or any other reason? Any pain, any discomfort in the chest, particularly center part of the chest, left side, right side, left arm, right arm of jaw, or in the neck, on activity, if it is gets relieved by stopping or taking rest, we should consider it is cardiac in nature. जैसे आप हिस्ट्री बता रहे हो, तो मेरे को लगता है कि दैट इज एंजाइना, और ऐसे पेशेंट की इवेल्युएशन होनी चाहिए बाय ये प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट. मे बी अगर सिम्टम ज्यादा हैं तो उनकी एंजियोग्राफी द्वारा होनी चाहिए. Thank you, sir. Is there any exercise to lower LDL and triglycerides? Yeah, no, there is no specific exercise, but any exercise, moderate exercise. पर LDL को डिक्रीज करने के लिए डाइट का ज्यादा रोल है, एक्सरसाइज का कम है. और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप गुड हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हो और आप डाइट में बहुत प्रिकॉशन लेते हो, तो 15 to 20% रिडक्शन हो सकती है आपकी LDL में. इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इट आल्सो इज अटैच्ड टू, रिलेटेड टू द जेनेटिक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. तो अगर आपको ज्यादा रिडक्शन चाहिए, then you have to add statins. What is the relevance of maintaining B12 and vitamin D levels for a healthy heart? Well, I think it is a good idea to have normal vitamin D levels, but the studies have not shown any direct correlation with the vitamin D deficiency in heart disease. But there was a data, but it has not been reconfirmed. So vitamin D deficiency producing heart disease is not really established. Another physiological question: why blood pressure in left hand and right hand are different? Very good question. Very sorry, I forgot to tell. In fact, there will be always some difference in the right and left side. The difference can be around 10 millimeters of mercury. Now, the thing which is important is कि हमें दोनों बाजू में BP देखना चाहिए, और जिसमें ज्यादा रहता है उसमें हमने फ्यूचर में मॉनिटरिंग करनी है. Thank you so much. Two more questions, sir. We'll close it here. Which parameter is more risky, higher LDL or higher triglyceride? LDL is more important. Triglyceride relationship with coronary artery disease is very mild. But अगर ट्राइग्लिसराइड आपके 450, 500 से ज्यादा हैं, so then you can have a very bad disease called pancreatitis. Pancreas में inflammation हो सकती है, and it's a very gandhi disease, very dirty disease in the sense people can develop diabetes, people can even die. So hypertriglyceridemia more than 400, I will always treat with some medication. So triglycerides are because of three reasons. एक तो because of diabetes, they will be more in diabetes, particularly if the diabetes is not controlled. Secondly, if there is a hypothyroidism, if the patient has thyroid deficiency. Thirdly, if you take a lot of sugars. Fourthly, it is genetic. So usually, I don't want to treat triglyceridemia if it is below 300, 350. Then we just advise, dietary advice, exercise and nothing else. Like anything more than 400, I will like to treat. आदमी है, उनका BMI 18.6 है, cholesterol 199, but LDL is always 150 to 140 to 150.
का LDL. सवाल है कि क्यों एलडीएल मेरा ज्यादा क्यों रहता है, जबकि मैं वजन ज्यादा नहीं है, मेरा ट्राइग्लिसराइड कम है. Right. See, that's what I told in the beginning, that by and large, the lipid profile is based on genetics. Obesity, खाना पीना जो है उसका जो रोल है 15 से 20% है. तो उनके केस में दे शुड चेक, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स का भी चेक करना चाहिए. दिस मस्ट बी फेमिलियल प्रॉब्लम, इट्स ए जेनेटिक प्रॉब्लम. Last question, sir. Blood pressure is low, 36 years female. I take anti-anxiety medications. My heart rate is 90 to 100. It's linked. Well, basically, if she's a female, has got anxiety, her blood pressure is not low, it must be normal. I think she should do, number one, exercise. She should do some yoga. It will settle down with that. If that doesn't help, then she should take a proper psychiatric consultation. Thank you so much, sir. Thank you so much for honoring us on this special day. And I request our CMO Corporate Center, Dr. Sangeeta, to please pose the vote of thanks. Thank you. आज मैं थैंक यू देना चाहूंगी डॉक्टर क्लेयर को, जिन्होंने अपना बिजी और व्यस्ततम समय से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और अपने अनुभव से और ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हार्ट के लिए उतना सिंपल और सरल भाषा में जो वेबिनार समझाया है, और इसके लिए मैं तहे दिल से हम लोग भाग्यशाली समझ रहे हैं कि जो आप आज हमारे साथ है और जो वेबिनार में हार्ट के बारे में, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में जो अपने अनुभव से बताए. और मैं इन लोगों को ये थैंक यू देना चाहूंगी ऑडियंस के लिए भी, और वो आज इसका लाभ जरूर लेंगे. और जो सर ने हेल्दी हार्ट के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो बताई है, बैलेंस डाइट के बारे में, और जो जीवन की सत्यता है, जो फियर फैक्टर है उसको कम करके हमको अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो बड़ा कारण हार्ट डिसीज के लिए रहता है. और जो अवॉइड करना है एक्सेस स्मोकिंग, अल्कोहल, रेगुलर चेकअप के लिए जाना है और फॉलो करना है जो डॉक्टर का एडवाइस है. सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना है, मेडिसिन जो अपने आप से स्टॉप भी नहीं करना है. और आज हम इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन प्लेज लेते हैं कि अपना हार्ट का हम ध्यान रखेंगे, और सर ने जैसे जैसे टिप्स दिए हेल्दी हार्ट के लिए वो हम जरूर फॉलो करेंगे. मैं फिर से एक बार थैंक्स देती हूँ डॉक्टर क्लेयर को और टीम गुड़गांव फोर्टिस को, और जो ऑडियंस है उनको भी जिन्होंने अपना टाइम लेके आज हमारे साथ ये वेबिनार दिल से दिल तक जो टॉपिक है उसको अटेंड किया. थैंक यू सर. Thank you, Dr. Sangeeta, Dr. Bera, and I would thank all the audience and NTPC people. Really, it has been a pleasure to talk to you. I wish I was with you physically, but maybe next time that can be done. It's always a pleasure to talk to all of you. Thank you very much. Thank you so much. This we end today's special webinar on World Heart Day. Thank you, everybody. Thank you.